Okay, now here we will discuss the concept of hypersensitivity and its types. As I have discussed the content about the basics of hypersensitivity or allergy in the previous video lecture, from where you can learn that what are the basics of hypersensitivity, and type 1 I have already discussed. In this part I will cover the type 2, type 3 and type 4 kind of hypersensitivity. जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रखा है कि ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन दैट इज इनिशियल 3 टाइप्स आर ह्यूमरल टाइप्स एंड लास्ट वन इज सेल मीडिएटेड टाइप्स. That's why the type 4 is called cell mediated hypersensitivity. So one by one we will clear our concept. So this is type 2. The important thing is that you have to know the other name of type 2 hypersensitivity, and the other name of type 2 hypersensitivity is cytolytic reactions. In this kind of hypersensitivity there will be cytolytic reactions. Cytolytic means lytic means breakdown, cyto means cell. So here you can see the breakdown of the cells will produce in ultimate reaction of immune system. तो अभी क्या होने वाला है यहाँ देखिए, ये this is cytotoxic T cell, and this cytotoxic T cell has in the surface, here I will show you, these are the Fc receptors. These Fc receptors allow the binding of the antibody IgG or IgM. Most of the time IgG will be involved. और यहाँ होती कौन कौन सी हैं? There may be IgM and IgG. So this IgG antibody once binds with the Fc receptor present on the cytotoxic T cell. This antibody, this already bound antibody has affinity towards the antigen present on the cells. अब यहाँ एंटीजन किस एंटीजन की बात कर रहे हैं? इन दिस 2 type of hypersensitivity the antigen will be the component of the cell. कोई foreign particle नहीं है. Here the antigen will be the natural cells will be acts like antigen. Natural cell आपकी कोई natural cell का कोई structure या कोई part आपका antigen की तरह act करेगा. तो इसीलिए ये लिखा है कि component of tissue cell acts as antigen in this kind of cytotoxic type 2 hypersensitivity. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब बात आया कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे एफसी रिसेप्टर है, वहां पे जो ये आईजीजी एंटीबॉडी है, ये कि इस सेल पे प्रेजेंट किसी स्ट्रक्चर को जो एंटीजन लाइक बिहेव कर रहा है, ये स्ट्रक्चर इसको क्या करेगी? बाइंड करेगी. इसको एंटीबॉडी से बाइंड करेगी. एंड वंस दे आर बाइंड्स विद ईच अदर देयर विल बी द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. इस सेल के अंदर जिस सेल का कोई पार्ट एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं, ये एक कैस्केड रिएक्शंस होती है जिसमें स्मॉल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. लाइक एक ने एक्टिवेट किया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को. तो अल्टीमेट जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपकी इस सेल को क्या करा देगा? साइटोलाइसिस. और इस पूरे सेल का ये अलॉन्ग विद एंटीजन ये सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो आपका बेसिक क्या है कि वंस दीज एंटीबॉडी present on the helper cytotoxic T cell binds with the natural antigen or part of cell that works like antigen on the target cell, there will be activation of what? Complement activation. There will be activation of complement system, and this resulting in the destruction of cell. So the example of this type 2 cytolytic reaction is erythroblastosis fetalis, जिसमें कि आरबीसी डिसरप्ट होती हैं. तो ये टाइप्स का विद एक एग्जांपल आपको इस तरीके से समझाना है. तो मेन जो इसमें पॉइंट था वो वही निकल के आया कि आपका जो बेसिकली जो टाइप 2 है वो साइटोलाइटिक रिएक्शन है. इसमें 2 एंटीबॉडी इन्वॉल्व हैं. इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है उसके अंदर एफसी
रिसेप्टर्स होते हैं जो कि IgG एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो एंटीबॉडी फिर किसी नेचुरल सेल में जो पार्ट उसका एंटीजन लाइक वर्क कर रहा उसको क्या करती है, बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा के इस सेल को क्या करा देती है, साइटोलाइटिक रिएक्शन से डिस्ट्रॉय करा देती है। तो इसका एग्जांपल के साथ आप इसको इस तरीके से लर्न करेंगे। आई होप कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की। देखिए, द नेम ऑफ द टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, हियर द सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल एक्ट्स एंड मीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। यहां पे जो जैसे यहां पे नेचुरल सेल में एंटीजन है किसी सर्कुलेट, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि वो चीज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रही है, और ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लो हो रही है उसके लिए जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है उसको हमने कैटेगरी थर्ड में रखा है, टाइप थर्ड में। और वो फ्लोटिंग आपका ब्लड में ही ना हो के किसी लाइक साइनोवियल फ्लूइड में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी हो सकता है। तो यहां पे टाइप थर्ड में आप सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है कि चूंकि यहां पे मेन एंटीबॉडी, यहां पे एंटीबॉडी थी IgG प्लस IgM, यहां पे जो मेन एंटीबॉडी है दैट इज IgG, बिकॉज IgG इज अ मॉपिंग एंटीबॉडी। जो फ्लोटिंग एंटीबॉडी है परसेंटेज में सबसे ज्यादा दैट इज IgG, दैट्स व्हाई IgG इज मेनली इन्वॉल्व इन टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब होगा क्या, सपोज करिए कि कोई एंटीजन आपका ब्लड में फ्लो कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, तो देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। मतलब यहां पे किस तरीके का एक्टिवेशन है, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन है। मैक्रोफेजेस क्या करेगा, इधर उसको क्या करेगा, उस इम्यून कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरे में अगर वो इम्यून जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है माइंस उसको मैक्रोफेज इनगल्फ नहीं कर पा रहा है, तब वहां पे क्या होगा कि वेरी स्मॉल इम्यून कॉम्प्लेक्स के केस में जो न्यूट्रोफिल्स होंगी ब्लड में प्रेजेंट, न्यूट्रोफिल्स दे स्टार्ट रिलीजिंग द डिस्ट्रक्टिव सेल्स, बिकॉज द न्यूट्रोफिल्स activated monocyte that is macrophage, they are the part of immune system। तो अभी ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगी, दे रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस, और ये डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस आपके उस फ्लोटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसको हम बोलते हैं, लाइक आपके एग्जांपल किसमें होता है, पॉलीआर्थराइटिस इसका एक एग्जांपल है। मींस अगर आपसे कई बार जीपैट में पूछता है कि पॉलीआर्थराइटिस किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो चूंकि साइनोवियल फ्लूइड में वो हम बात करते हैं दैट इज टाइप थर्ड फ्लोटिंग। तो ये आपका क्या है, टाइप थर्ड का पार्ट है। अब हम बात करते हैं टाइप 4। देखिए टाइप 4 ये दो तो ह्यूमरल था, फास्ट थे, अब ये सेल मीडिएटेड है। यहां पे किसी रिएक्शन को डेवलप होने में ही मात्र आपके कितने आवर्स लग रहे हैं, 12 आवर्स। तो सबसे पहला पार्ट है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड, टी हेल्पर सेल इन्वॉल्व है, ऑल्सो कॉल्ड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये सब आपके जीपैट में एग्जामिनेशन में आता है, आपके थ्योरी में भी लिखना होगा आपको। नाउ हियर दे आर द एंटीजन। ना एंटीजन हैव देयर बाइंडिंग्स ऑन द सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, तो टी लिम्फोसाइट ये टी सेल है दैट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन। ये नॉर्मली ये सेल ही इसको टी सेल जो है इम्यून सिस्टम की उसमें बाइंडिंग होगी, किसके लिए, एंटीजन के लिए। अब ये एंटीजन इस पे टी हेल्पर सेल पे बाइंड करेगा एंड दे स्टार्ट, टी हेल्पर सेल स्टार्ट रिलीजिंग व्हाट, साइटोकाइंस। वंस द एंटीजन बाइंड्स विद द sensitized T helper cell, this T helper cell start releasing what, cytokines, and cytokines once releases they start attracting granulocytes like neutrophils, like eosinophils. So these are granulocytes attracts फ्रॉम द वर्किंग ऑफ साइटोकाइन की वजह से ग्रेनुलोसाइट अट्रैक्ट होंगी एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड द सिम्टम्स। तो अभी क्या होगा, साइटोकाइंस जब रिलीज होंगे तो वो तो अट्रैक्शन उनका होगा ही ग्रेनुलोसाइट्स का, साथ ही साथ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज होंगी, सेल्स होंगी। यहाँ पे
साइटोटॉक्सिक टी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगी, मोनोसाइट्स एक्टिवेट होंगी जिनको एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बोलते हैं, और ये सेल्स क्या करेंगी, उसको क्या करेंगी, इस एंटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये आपका एक हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को आप फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।